Hello everyone, in this lecture we are going to see next topic, that is population. See what is population? Population ecology is the area of ecology which links ecology to the population genetics and evolution. And population is the group of individual living in a particular geographical area. पर्टिकुलर एरिया में कितने इंडिविजुअल रहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज पॉपुलेशन. Population attributes. A population has certain attributes that an individual organism does not have. These attributes are birth rate, death rate, sex ratio and population density. नेक्स्ट यहाँ पर टर्म्स दिए, देखो क्या क्या है. नैटेलिटी. नैटेलिटी मीन्स वॉट? बर्थ रेट. बर्थ रेट जो भी रहता है इट इज़ कॉल्ड एज नैटेलिटी. सी, इट इज़ द बर्थ रेट ऑफ पॉपुलेशन. इट हैज़ द greatest influence on the population growth. Natality is a crude birth rate or specific birth rate. Now let's we see what is crude birth rate and specific birth rate. Crude birth rate is used when calculating population size, that is number of births per thousand population per year, whereas specific birth rate is used relative to specific criterion such as age. For example, see, if in a pond there were 200 carp fish last year and through reproduction 800 new fish are added, taking the current population to 1000. We calculate the birth rate, 800 divided by 200 is equal to 4 offsprings per calf per year. समझ में आया ये? What is specific birth rate? It is used to a relative to specific criteria such as age. एज से रिलेटेड स्पेसिफिक क्राइटेरिया एक लेते हैं और उससे बर्थ रेट कैलकुलेट करते हैं. सी देन नेक्स्ट देखिए, एब्सोल्यूट नैटेलिटी. द नंबर ऑफ बर्थ्स अंडर आइडियल कंडीशंस with no competition, abundance of resources such as food and water, etc. It is called as absolute natality. Then realized natality, the number of births when environmental pressure come into play. It is called as realized natality. It must be recommended that absolute natality will be always more than the realized natality. देन नेक्स्ट देखिए क्या है. अभी हम लोगों ने देखा नैटेलिटी, दैट इज बर्थ रेट. देन यहाँ पर है मॉर्टैलिटी. नाउ व्हाट इज मॉर्टैलिटी? मीन्स डेथ रेट. It is the death rate of population. Mortality rate or death rate is a measure of number of death in a particular population in proportion to the size of that population per unit of time. Mortality rate is typically expressed in death per 1000 individual per year. Thus, a mortality rate of 9.5 in a population of 1000 would mean 9.5 deaths per year in that entire population or 0.95% of the total. जैसे कि बर्थ रेट काउंट करते हैं वैसे ही डेथ रेट भी काउंट करते हैं फॉर द कैलकुलेटिंग पॉपुलेशन. यहाँ पर देखिए टर्म्स दिए, एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी एंड रियलाइज्ड मॉर्टेलिटी. See, the number of death under ideal condition are called as absolute mortality. Means with no competition, abundance of resources such as food and water. जितने भी deaths होते हैं those are calculated under absolute mortality. Then realized mortality, the number of death when environmental pressure come into play. It is called as realized mortality. It must be recommended that absolute mortality will be always less than the realized mortality. The next is sex ratio. The sex ratio of the population affect and is reciprocally affected by birth, death, immigration and emigration rates. It is measured as the ratio of the number of individuals of the sex to the other sex.
The male and female in a ratio is 1:1 is generally the most common evolutionary stable strategy. Sex ratio means कितने मेल हैं कितने फीमेल, उनका जो काउंट रहता है इट इज़ कॉल्ड एज सेक्स रेशो. A population at any given time is made of individuals of different age groups as pre-productive age group, then reproductive age group and post reproductive age group. तो जितनी भी पॉपुलेशन है वो 3 ग्रुप में क्या की डिवाइड की गई है. फर्स्ट क्या है यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव मीन्स जो बच्चे रहते उनका एज ग्रुप रहता है 0 to 14 ईयर्स. तो 0 से 14 साल तक के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं दोज आर ग्रुप्ड अंडर प्री रिप्रोडक्टिव. इन मेन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 14 to 45 ईयर्स जिसमें सब एडल्ट्स रहते हैं. एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप मीन्स ओल्ड 45 ईयर एंड अबव. ऐसे क्या है 3 ग्रुप्स बना दिए हैं पॉपुलेशन के. देन नेक्स्ट देखिए एज पिरामिड्स. सी इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एज ग्रुप इज प्लॉटेड for a population, the resulting structure is called as age pyramid. For human population, the age pyramid show the distribution of male and female in a combined diagram. The shape of pyramids reflects the growth status of population, that is expanding or growing population having large number of individuals as per in a large number of individuals of pre-reproductive age group. सी हम ग्रोइंग पॉपुलेशन किसे कहेंगे जिसमें बच्चे मीन्स 0 to 14 ईयर्स तक का जो भी यंग है यंग जनरेशन वो ज़्यादा रहेगा. तो वो क्या हुआ अपना ग्रोइंग पॉपुलेशन. समझ में आया. मीन्स पॉपुलेशन हैविंग लार्जर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. प्री रिप्रोडक्टिव मीन्स 0 to 14 ईयर्स के जो भी इंडिविजुअल्स है वो ज़्यादा रहेंगे. तो क्या रहेगा ग्रोइंग पॉपुलेशन. इन स्टेबल पॉपुलेशन सी व्हेन प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव इज सेम देन पॉपुलेशन रिमेन स्टेडी. प्री एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव सेम रहेगा ग्रुप काउंटिंग में तो उस पॉपुलेशन को क्या कहते हैं स्टेडी पॉपुलेशन. देन डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन सिंपल है. इसमें क्या रहेगा पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ज़्यादा रहेगा. सी लार्जर नंबर ऑफ पोस्ट रिप्रोडक्टिव एंड स्मॉलर नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव मेक्स पॉपुलेशन डिक्लाइन. पॉपुलेशन साइज मोर टेक्निकली नाउ कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी need not necessarily be measured in numbers only. If the population is huge and counting is very time consuming, then biomass is a more meaningful measure of population size. Sometimes relative density serves the purpose equally well. Then next topic देखो क्या है population growth. The size of population keeps changing with time depending on various factors like food, predation, pressure and adverse weather. So different countries show different population growth as follows. Rapid growth, then slow growth, zero growth and negative growth. तो ये क्या है population growth depending on various factors such as food, then predation, then natural calamities that is adverse weather. इससे अफेक्ट होके जितनी भी पॉपुलेशन रहती है वो कैसे काउंट करते हैं और कैसे शो करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ. तो यहाँ पर देखिए दिए हुए सर्टन टर्म्स. रैपिड ग्रोथ इन केनिया एंड नाइजीरिया, स्लो ग्रोथ इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया, ज़ीरो ग्रोथ इन डेनमार्क एंड इटली, नेगेटिव ग्रोथ इन जर्मनी एंड हंगरी. सी एज पिरामिड फॉर कंट्रीज विथ रैपिड, स्लो, ज़ीरो एंड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स. यहाँ पर देखिए रैपिड ग्रोथ जो दिया है मेल एंड फीमेल इक्वली वो 0 to 14 ईयर्स ज़्यादा है. वहाँ पर ये जो कलर शो किया है सी ये जो ब्लू कलर दिखाया है वो क्या है 0 to 14 ईयर्स. तो 0 to 14 ईयर्स यहाँ पर देखिए ये ज़्यादा है इधर. तो इसलिए ये क्या है रैपिड ग्रोथ.
अगर यंग पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली धीरे धीरे आगे वाला ही बढ़ता जाएगा। देन स्लो ग्रोथ में यहाँ यंग 0 to 14 ईयर्स कम दिखाई दिए हैं। देन ज़ीरो ग्रोथ वहाँ पर देखिए 0 to 14 एज ग्रुप जो है वो बहुत ही कम होते गया है, मीन्स इक्वल है देन द टू द पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। एंड इन निगेटिव ग्रोथ, सी निगेटिव ग्रोथ में क्या दिया है यहाँ पर, ये जो दिख रहा है वो लेस है देन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। समझ में है? तो ये क्या है, ग्रोथ पिरामिड से फॉर द ग्रोथ रेट। यहाँ पर हम ब्लू कलर क्या शो कर रहा है 0 to 14 ईयर्स, देन येलो कलर 15 to 44 ईयर्स, रेड कलर 45 to above। तो ऑन दैट बेसिस ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव मीन्स ये वाला ब्लू कलर, देन येलो ग्रुप जो है वो कौन सा है, रिप्रोडक्टिव। एंड रेड ग्रुप जो रेड कलर से जो भी डिनोट किया है वो क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो ऑन दैट बेसिस ये 4 पिरामिड्स दिए हुए ग्रोथ रेट के, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ पॉपुलेशन फ्लक्चुएट्स ड्यू टू द चेंजेस इन 4 बेसिक प्रोसेस। जो भी पॉपुलेशन रहती है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वो डिपेंडेंट रहती है 4 बेसिक प्रोसेस के ऊपर डिपेंड रहती है। फॉर एग्जांपल कितने पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, बिकॉज ऑफ बर्थ रेट। डिक्लाइन कैसे होती है पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ डेथ रेट से। एंड अनदर टर्म्स आर माइग्रेशन। सी माइग्रेशन में 2 टर्म्स दिए हुए हैं, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। सी तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग नैटेलिटी, कौन से 4 बेसिक प्रोसेस है जो पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी को अफेक्ट करते हो, फ्लक्चुएट करते। फर्स्ट इज नैटेलिटी, दैट इज birth rate. See, it refers to the number of births during the given period in a population. Then mortality, यहाँ पर याद रखना है एम से एम डी मीन्स mortality मीन्स डेथ रेट, एंड एन बी दैट इज बर्थ रेट। तो mortality it is the number of death during a given period in a population. then यहाँ पर देखो टर्म से आई, दैट इज इमिग्रेशन। It is the number of individual of some species that have come into habitat from elsewhere during the time period under consideration. तो immigration means what, बाहर से अपने यहाँ पर लोग आ रहे हैं तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल देखो अपने सिटी में गांव से लोग यहाँ पर आते हैं तो गांव का जो भी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम हो जाता है एंड सिटीज़ का पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होता है। तो बाहर से आने वाले जो स्पीशीज़ रहते उनका जो भी माइग्रेशन रहता है, इट इज़ कॉल्ड एज इमिग्रेशन। एंड एमिग्रेशन मीन्स व्हाट, इट इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। तो उसे क्या कहते हैं, अपना हैबिटेट छोड़ के चले जाते, मीन्स गांव से लोग छोड़ के चले जा रहे हैं तो उनको क्या कहते हैं, एमिग्रेशन। समझ में आया? और सिटीज़ का पॉपुलेशन इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ दिस पीपल, इट इज़ कॉल्ड एज immigration and emigration. So if n is the population density at time t, then its density at time is t plus 1 can be calculated by following formula. See the formula here. This is the formula is given here. then next देखो पॉइंट क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विद टाइम शो 2 पैटर्न्स। यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स कितने हैं, 2 मॉडल्स दिए हुए हैं। देखो 2 मॉडल्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, फर्स्ट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल्स, दैट इज when the resources availability is unlimited in the habitat, the population grows in an exponential or geometric fashion.
समझ में आया। जब रिसोर्स अवेलेबिलिटी कैसी रहती है, अनलिमिटेड रहती है, तो पॉपुलेशन एकदम फास्ट ग्रो होती है। देन द इक्वेशन इज dN/dt is equal to Rn. When a population show exponential growth, the curve plotted with n is in relation to biomass. Time assumes J shape. तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल कैसे होता है, J शेप में दिखता है। सी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पॉपुलेशन साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड रिसोर्सेज, इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व ऑफ पॉपुलेशन। सी यहाँ पर टाइम डिनोट किया है और यहाँ पॉपुलेशन साइज मीन्स ये कैसे इंक्रीज होते जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देन नेक्स्ट देखिए लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। फर्स्ट देखा हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल growth model, then second है logistic growth model. No population can continue to grow exponentially as the resource availability become limited at certain point of time. तो उसका जो भी ग्राफ प्लॉट होगा वो कैसे दिखता है, देखिए लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व पॉपुलेशन, यहाँ पर ये टाइम डिनोट किया है एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे ग्रोथ, दैट इज साइज और वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जब लिमिटेड रहते हैं रिसोर्सेज तो एट सर्टन पॉइंट पॉपुलेशन कैसे हो जाता है, स्टेडी, मीन्स वहाँ पर ग्रोथ नहीं होती पॉपुलेशन की। इट इज़ कॉल्ड एज लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ऑफ पॉपुलेशन। देन नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। सी there is no natural habitat which has only one species or animal or plants. For any species, the minimal requirement is another species as a food. Even a plant species which has photosynthetic abilities cannot survive alone. It needs soil microbes to break down the organic matter in soil and release the inorganic nutrients. It is obvious that in nature, animal, plants and microbes cannot live in isolation but interact in many ways to form a biological community. समझ में आया। मीन्स जो भी ऑर्गेनिज्म रहता है इकोसिस्टम में वो कभी अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता। तो यहाँ पर प्लांट्स जो ऑटोट्रॉप्स रहते हैं मीन्स अपना फूड खुद बनाते हैं, उनको भी सॉइल बैक्टीरियम की ज़रूरत पड़ती है फॉर ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक मैटर विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल। और हम तो ऑलरेडी डिपेंडेंट रहते हैं अनदर प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर फॉर आवर एनर्जी और फॉर आवर फूड। तो जो भी इंटरेक्शंस रहती है इन बिटवीन टू स्पीशीज़ एंड सेम स्पीशीज़, दोज आर कॉल्ड एज population interactions. So these interactions are of two types. Intraspecifics means in between the same population, and interspecific interaction means in between the member of different species. Intra means same and inter means different species. तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर the interspecific interactions occur between the minimum two organism, plant, animal or plant and animal. Such interactions may be classified as a 4 types. फर्स्ट कौन सा दिया है यहाँ पर इंटरस्पेसिफिक का, न्यूट्रलिज्म दैट इज निगेटिव, हार्मफुल, पॉजिटिव बेनिफिशियल, and both positive and negative interactions. Even in simplest communities, many interactions exist. Not all may be easily seen. Interspecific interactions arise from the interaction of population of two different species. These interactions could be beneficial, detrimental or neutral to one of the species or both. तो जो भी इंट्रा स्पेसिफिक रहते हैं वो कहाँ किस में होते हैं, सेम पॉपुलेशन में, एंड इंटर स्पेसिफिक इन बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीसीज। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, सी इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस। तो इसमें दो जो भी दिए हैं चार्ट में देखो, फर्स्ट है न्यूट्रलिज्म, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, मीन्स ए एंड बी यहाँ पर दो क्या दिए, स्पीशीज़ दिए हैं, तो उन दोनों के ऊपर क्या, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट,
इज कॉल्ड एज न्यूट्रल। मीन्स दोनों भी पार्टनर जो भी रहते हैं वो कैसे रहते हैं, पार्टनर मीन्स यहाँ पे जिनके बीच में इंटरेक्शंस हो रहा है वो न्यूट्रल रहते, तो उनको कहते हैं, उस इंटरेक्शंस को क्या कहते हैं, न्यूट्रलिज्म, जिसमें वो पार्टनर कैसे रहते हैं, न्यूट्रल। देन निगेटिव इंटरेक्शंस, सी फर्स्ट क्या है, कंपटीशन, डायरेक्ट इंटरफेरेंस टाइप, एंड कंपटीशन दैट इज रिसोर्स यूज टाइप, एंड थर्ड वन है एमेंशियलिज्म। निगेटिव इंटरेक्शंस जिनमें कंपटीशन होता है दो स्पीसीज में, तो उनको क्या कहते हैं, निगेटिव इंटरेक्शंस। तो जो भी कंपटीशन में विन होता है या सरवाइव करता है वो बेनिफिट, उसको बेनिफिट मिलता है और अदर को हार्म मिलता है। इन पॉजिटिव इंटरेक्शंस भी दोनों भी क्या रहते हैं, उसमें स्पीशीज बेनिफिशियल रहते, किसी को भी हार्म नहीं होता, तो दोज आर कॉल्ड एज पॉजिटिव इंटरेक्शंस। कौन से फर्स्ट इज सिम्बायोसिस दैट इज म्यूचुअलिज्म, थर्ड सेकेंड वन इज कमेंशियलिज्म, एंड थर्ड वन इज प्रोटो कोऑपरेशन। एंड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप इंटरेक्शंस देखिए, पैरासाइटिज्म एंड प्रिडेशन, जिसमें एक को बेनिफिट होता है, एक स्पीशीज़ को और दूसरे स्पीशीज़ को हार्म होता है। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग क्या क्या है इसमें। सी फर्स्ट इंटरेक्शन दिया है यहाँ पर कंपटीशन। अभी कंपटीशन मीन्स फॉर इन बिटवीन टू स्पीशीज कंपटीशन होता है फॉर द फूड, शेल्टर एंड मेट, इट इज़ कॉल्ड एज कंपटीशन। कंपटीशन इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन both the species are at a loss. See, totally unrelated species may compete for the same resource. For example, in shallow creeks on the west coast of Mumbai, visiting flamingos and resident fish compete for their common food, that is zooplankton. Secondly, the resources need not always be limiting for competition to occur. In competition, the feeding efficiency of one species is reduced due to the interference or inhibitory presence of the other species, even if resources are abundant. Example, leopards do not hunt in close proximity of lion pride. Therefore, competition is best defined as a process in which the fitness of one species is significantly lower in the presence of another species. मीन्स इसमें क्या होता है, जो भी पावरफुल रहता है वही क्या करता है, सरवाइव करता है या विन होता है। तो यहाँ पर देखिए एक फ्लेमिंगो एंड फिश कम्पीट फॉर जू प्लांटन्स। तो जू प्लांटन्स मीन जो फ्लोटिंग प्लांट्स रहते हैं वाटर में, उसके लिए वो कम्पीट करते हैं। अनरिलेटेड स्पीशीज ऑल्सो कम्पीट फॉर सेम रिसोर्स। तो यहाँ पर ये फ्लेमिंगो एंड फिश अलग अलग स्पीशीज़ है, वो सेम जू प्लैंक्टन के लिए क्या करते, कम्पीट करते फूड के लिए। देन कॉम्पिटिटिव रिलीज, सी a species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of competitively superior species is called as competitive release. This species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed. Then next देखिए क्या है, Goo's competitive exclusion principle. It states that two closely related species competing for the same resources cannot exist together and the competitively inferior will be eliminated by superior. मीन्स यहाँ पर क्या दिया है, जो भी का स्पीशीज़ रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लायन जो रहता है वो अपना एरिया मार्क करके रखता है, तो उसके अंदर कोई भी अनदर स्पीशीज़ वहाँ पर शिकार भी नहीं कर सकता। और जो सुपीरियर रहता है, जो भी डोमिनेटिंग रहता है, वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे डोमिनेटिंग बन जाता है, और जो इन्फीरियर स्पीशीज़ रहते हैं वो कम होते जाते हैं। नेक्स्ट टर्म इज रिसोर्स पार्शनिंग. It is the mechanism meant for coexistence of species to face competition. According to this, if two species compete for the same resource,
They could avoid competition by choosing different times for feeding or different foraging partners. Is called as resource partitioning. एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर देखो, लायन स्टैंडिंग ओवर डेड लेपर्ड रिमूविंग competition. This is the example of competition. See, competition occurs when closely related species compete for the same limited resources. Pictures are given here. Then unrelated species can also compete for the resources. Evidence for competition. See, Abingdon tortoise in Galapagos Island become extinct within a decade after goats were introduced on the island due to the greater browsing efficiency of the goats. वहाँ से क्या हुए, जो भी टॉर्टोइज थे वो कम हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए बिकॉज ऑफ द गोट. बिकॉज गोट क्या करते, फास्ट ग्रास खाते हैं और ये टॉर्टोइज भी ग्रास के ऊपर ज़िंदा रहते थे, तो इसलिए वो क्या हो गए, अभी एक्सटिंक्ट हो गए. एबिंगडॉन टॉर्टोइज. Then evidence for competition. See, competitive release. It is the expansion of distributional range of a species when the competing species is removed. वो क्या करते हैं, कॉम्पिटिंग स्पीशीज़ रिमूव होने के बाद क्या करते हैं, अपना जो डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज रहता है, मीन्स एरिया रहते हैं, वो इंक्रीज करते हैं. यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है देखो, Cornell's field experiment on the rocky sea coast of Scotland. There are two barnacle species यहाँ पर दिख रहे हैं जो रॉक के ऊपर ग्रो होते हैं, शेल्स के जैसे, barnacles, Balanus and Balamus and Thalamus. That is, Balamus are larger and comparatively सुपीरियर रहते हैं ये शेल्स के जैसे, एंड जो थैमैलस रहते हैं वो स्मॉलर रहते हैं. तो बैलानस डोमिनेटेड इंटरटाइडल एरिया एंड एक्सक्लूड थैमैलस. मीन्स बैलानस जो थे बड़े, उन्होंने क्या किया, इंटरटाइडल एरिया पूरा कवर किया, डोमिनेट किया, और उनको जो छोटे स्पीसीज थे, स्मॉलर स्पीशीज़ को क्या किया, एक्सक्लूड किया. When Cornell experimentally removed Balanus, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली जब ये बैलानस जो स्पीसीज़ है उनको रिमूव किया, तो वहाँ पर जो स्मॉलर हैं थैलामस, वो कॉलोनाइज्ड हुए इन द इंटरटाइडल जोन. तो ये क्या है, एविडेंस फॉर कंपटीशन. जो ऊपर वाला जो पिक्चर में बैलानस जो दिख रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ बैलानस ये जो स्मॉलर स्पीशीज़ है वो वहाँ पर ग्रो नहीं होता. तो ये क्या है, एविडेंस ऑफ कंपटीशन. मीन्स उनमें एविडेंस होती है, ये एविडेंस मिला है कंपटीशन का. देन नेक्स्ट हम लोगों ने जो अभी देखा, गुड्स कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. तो व्हाट इज गुड्स प्रिंसिपल? सी, इट स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज competing for the same resources cannot coexist indefinitely, and competitively inferior one will be eliminated eventually. ये क्या है, गुड्स प्रिंसिपल. गाउड्स प्रिंसिपल मीन्स जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ रहते हैं वो क्या करते हैं, उसमें से जो भी सुपीरियर रहता है वो वहाँ पर रहता है, और दूसरा जो इन्फीरियर रहता है वो उसको वो एलिमिनेट करते हैं. दिस मे बी ट्रू इन लिमिटेड रिसोर्सेज बट नॉट अदरवाइज. स्पीशीज फेसिंग competition may evolve mechanism for coexistence rather than exclusion. एग्जाम्पल है रिसोर्स पार्शनिंग. तो व्हाट इज़ रिसोर्स पार्शनिंग, देखते हैं अभी रिसोर्स पार्शनिंग क्या है. सी, रिसोर्स पार्शनिंग. सी, इट इज़ द डिवीजन ऑफ limited resources by species to avoid competition. For this they choose different feeding times or different
फोरेजिंग पार्टनर पैटर्न्स मीन्स अगर रिसोर्स लिमिटेड रहेगा तो अदर वो दूसरा जो स्पीसीज़ रहता है वो एलिमिनेट नहीं होता, तो क्या करता है अपने पैटर्न चेंज करते, फीडिंग पैटर्न। फॉर एग्जांपल देखो, मैकआर्थर शोड दैट द 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ warblers living in a tree on a tree could avoid competition and coexist due to the behavioral differences in their foraging activities। तो यहाँ पर दिए है देखो 5 स्पीसीज़ है, वो अलग अलग टाइम पे क्या करते हैं, फीड करते हैं। तो उसको ये क्या कहते हैं, रिसोर्स पार्टीशनिंग रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो ये क्या था, कंपटीशन। then नेक्स्ट देखिए म्यूचुअलिज्म। इट इज़ द इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन इन विच बोथ द स्पीसीज इंटरैक्ट एंड गेट बेनिफिट। इसमें क्या होता है, दोनों भी जो स्पीशीज़ रहते हैं वो इक्वली बेनिफिट रहते हैं, किसी को हार्म नहीं होता या कोई भी ओवर डोमिनेटिंग नहीं रहता, बोथ आर इक्वली बेनिफिटेड। फॉर एग्जाम्पल लाइकेन्स, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड अलगी, ये वन एग्जाम्पल है। देन साइनोबैक्टीरिया, algae or cyanobacteria. Then second example is mycorrhiza. It is an association of fungus with roots of higher plants. ये फंगस हायर प्लांट्स के रूट्स के ऊपर और इनसाइड ग्रो होता है। फंगा हेल्प्स टू एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रॉक एंड प्लांट्स प्रोवाइड एनर्जी बिल्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स टू फंगाई। तो यहाँ पर फंगा एंड प्लांट क्या है, इन म्यूचुअल रिलेशनशिप। Plants depend on insects for pollination and in return they give them nectar or pollens to eat। समझ में आया। यहाँ पर प्लांट्स, ये थर्ड एग्जांपल है, प्लांट्स इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते फॉर देयर पॉलिनेशन एंड बिकॉज ऑफ दैट बर्ड्स को क्या मिलता है, इन टर्न्स हनी, नेक्टर एंड पोलन्स खाने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एनिमल हेल्प द प्लांट्स in seed dispersal and in return they give fruits to animals as a food। यहाँ पर देखो पिक्चर्स दिए हुए हैं हनी बी एंड बर्ड का। सी यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है देखो, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड अलगा इज कॉल्ड एज लाइकेन, जिसमें अलगा जो रहता है वो फोटोसिंथेसिस करता है एंड फंगस पार्टनर जो रहता है वो फूड एब्जॉर्प्शन करता है और उसके वजह से क्या मिलता है, शेल्टर मिलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ पॉपुलेशन interactions we will see in our next lecture।